letter find into good health. I am writing to bring you attention a matter of grave concern that has come to my notice. It has been illegally the Karnataka State Vijaypur City MLA Basangauda Patil that during the challenging times of COVID pandemic, when our nation was grappling with the unaccepted circumstances, allegations of 40,000 crore rupees we are carried about the BJP government lead by B.S. Yediyurappa. These allegations, if true, represent the significant branch of trust and promises of power, particularly given the context of the global ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನೈತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ದೂರು. ಇದು ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನೈತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಡುಗು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಶ್ರೀ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಈ ಥರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 40,000 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಚೇತಾವಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನ ಜಾಗರಣ ಆಗಬೇಕು. ಜನರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಧರ್ಮದ ಗೊಂದಲ ಒಳಗೆ ಜನರನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಾವು ಏನೈತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ವಿಷಯ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತ ಜನಗಳಾಗಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಈಗೇನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಏನಂತಾರ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡು ನಾವು ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ. सर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, कर्नाटक राष्ट्र समिति विजयपुर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट। आज हमें 26/12 को जो हमारे बीजापुर सिटी एमएलए श्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल एक स्टेटमेंट दिए थे कि भाई कोविड के दौरान 40,000 करोड़ का घोटाला हुआ है अपने ही सरकार के, जो सरकार में बसनगौड़ा पाटिल भी शामिल थे। तो क्या मालूम है क्या 40 चोर, जो अली बाबा 40 चोर बोलते हैं, तो ये भी एक चोरी है। तो हमारा आरोप सीधा उनके ऊपर यह है कि क्यों कर वो बोले, तो जब क्यों खामोश थे, आज ही ये अल्फाज बाहर क्यों, इससे पहले क्यों नहीं आए। ये जो हमारे सवालात हमारे बसनगौड़ा पाटिल से हैं, तो क्या उनका इनकी इतनी कम ज़र्फ़ी देखो कि देश एक कठिन परिस्थिति में था। कोविड के दौरान लोगों को इतना जुल्म हुआ काम से ये नहीं, और ये विधानसभा में बैठे राज्य को किस तरह लूटना एक प्लानिंग बना को 40,000 करोड़ लूटा गया है। सिर्फ गौड़ा हमारे बसनगौड़ा पाटिल इतना एक सरसरी एक सिर्फ दो क्लू दिए हुए। एक मास्क में 40 रुपये का मास्क 490 में ख़रीदा गया है, और 20,000 रुपये में बेड रेंट पर लिए हैं। तो 20,000 रुपये में रेंट क्या है मालूम है क्या, एक खरीदी आता था, और वो 100% सही है कि भाई खरीदी आता था। तो ये घोटालों की जांच होना चाहिए, और दूसरे बहुत से टैबलेट्स हैं और दूसरे खर्च हैं। तो इस तरह के फजूल जो खर्च
जो बीजेपी सरकार ने हमें हमारे पैसों का ठगी हुई है, इसका हिसाब देना होगा। तो मेरा पूरी कर्नाटक की और राष्ट्र के लोगों से मेरी एक पर्सनल क्या बोलते हैं का ये है रिक्वेस्ट के आप लोगों को अभी जागना होगा, मोबाइल को एक कोने में फेंको और रास्तों पे हमें उतरना होगा। एक मैं नेशनल लेवल पर जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनसे आने वाले एमपी इलेक्शन में क्या ऐसे चोरों को दोबारा भेजेगी हमारे अवाम, तो इसके खिलाफ क्या है अवाम को जागना होगा। जागते हुए क्या है आने वाले दिनों में इनको सपोर्ट नहीं होना। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप ही का एक टीम का सदस्य है। और कर्नाटक के सीएम जो बीजेपी को भला बुरा बोलते थे, अपोजिशन में नहीं, आज आप सत्ता में हैं, तो आपके हाथों एक सुनहरा मौका है। तो आप बसनगौड़ा को अरेस्ट करा के और क्या क्या है बोल के पूरी ज़बानी खुलाना। अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक मामूली चोर को 10 रुपये चोरी को ले को जाको पूरा मुंह जैसा खुलाता है, इनको ले को जाको और क्या क्या है पूरी इनके ज़बानी ले को वो तहकीकात करा को जितने भी इसमें शामिल हैं तो इनको अरेस्ट करना। सबसे गंभीर विषय कोविड के दौरान जो लोगों के दिलों में जो एक ज़ख्म है वो जो 21 का वो अभी तक ना भूल पाने की वजह, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है देखो लोगों को जात पात और हिंदू धर्म को बदनाम करते हुए, भाईचारे में दरार डालते हुए, चोरियाँ जो घोटाले कर रही इसके ऊपर है कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होना मेरी मांग है। सर अभी तक कौन भी बीजेपी वाले इसके बारे में क्या भी बात नहीं कर क्यों कोई भी ना कोई भी इसके खिलाफ क्या है कोई भी ना एक्शन लिए है और ना इनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई लिए, तो खामोशी जाहिर करती है कि भाई उनका एक चैलेंज है, अगर मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई होंगी तो मैं और भी दूसरे भी ये पोल खोलूँगा। तो बीजेपी को उनके पोल खोलने का डर है, हो सकता है इसलिए खामोश है। अगर होता तो उनके खिलाफ उन्होंने ये करना था, एक्शन लेना था। हाँ, क्या इनका भी क्या तरह खुलासा होगा कर को नो भी चुप बैठे रहेंगे? नहीं, खुलासे की बात नहीं है, खुलासे की बात नहीं है। नहीं, अभी यत्नालों खे परसों आप मुझे क्या तर का बीजेपी से बाहर निकाले तो तुम्हारा भी वही बोल रहा हूँ। हाँ, अगर इनको निकाले तो और बाहर निकाल दूंगा बोल हाँ, उस डर से ये सुनी अनसुनी कर दो। हमारी राज्य की जनता क्या है, आज सुनती 2 दिन टॉपिक में रहता है, तीसरे दिन भूल जाती है। हाँ, क्यों इनके ऊपर एक्शन ले को दूसरे मरे हुए मुर्दों को कब्र में से क्यों निकालने लगाना, इस अंदाजे से खामोश है। तो लोगों को मेरी एक आवाज़ है, लोगों को रास्तों पर आना चाहिए। खामोशी आपको ने हमारे आने वाले बच्चों की भविष्य बहुत ख़राब है। और जनता को क्या ये करते हैं सर? वही बता रहा हूँ ना, जागो जागो जागो, जनता को जागने की मैं बोल रहा हूँ, आओ बाहर। ऐसे भ्रष्ट जो कांग्रेस भी उन्हीं की है, बस उनके चोरी को इन्हों छपाते हैं, इनके चोरी को उन्हों छपाते हैं। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज हमारी कर्नाटक राष्ट्र समिति का एक ही मकसद है, जिस दिन हमें सत्ता में आएंगे ये कांग्रेस वालों के जैसा ने पकड़ को सीधा इनको अंदर, अगर ये फैसला जनता को करना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार या तुम्हारी कांग्रेस और बीजेपी को दूर रखकर अवाम अगर हमें एक बार मौका देती है तो रवि कृष्ण रेड्डी एक अपनी पूरी ज़िंदगी एक कर्नाटक निर्माण के वास्ते, एक अच्छा कर्नाटक निर्माण के वास्ते त्याग करें। जैसे ही रवि कृष्ण रेड्डी अगर सीएम बनेंगे तो सिद्धरामैया हो, येडियुरप्पा हो, ये सब जेल में रहेंगे। ओके, आपका नाम सर?